السلام علیکم ناظرین، KBN کے نیوز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ٹولی چوکی ندیم کالونی ویلفیئر ایسوسی ایشن اور آس پاس کے علاقوں کے رہائشیوں نے حیدرآباد شہر میں حالیہ شدید بارشوں کے دوران فوری طور پر ان کی مدد کرنے کی وجہ سے کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین کا شکریہ ادا کیا، جو GHMC کی مدد سے اعلیٰ ترجیح پر کیا گیا تھا۔ اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے ٹولی چوکی کارپوریٹر ہارون فرحان اور علاقے کے مجلسی صدور و کارکن بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ٹپا چبوترا حدود میں واقع میاں مستعد مسجد سے متصل قبرستان کے مسئلے جو کافی دنوں سے چل رہے تھے، اسے وقف بورڈ کی جانب سے حل کرتے ہوئے اس پر کارروائی کی گئی اور وہاں موجود قابضین کو ہٹا دیا گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے اس مسئلے پر مطالبہ چل رہا تھا کہ وہاں پر موجود آٹو گیرج کو ہٹا دیا جائے، جس کی وجہ سے وہاں پر قابضین اپنی منمانی کر رہے تھے۔ اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے وقف بورڈ نے مقامی پولیس کے ہمراہ وہاں کے قابضین کو ہٹا دیا ہے۔ بنجارہ ہلز پولیس کی جانب سے ہیرو و سونے کے زیورات کی چوری میں ملوث ایک سارق انیش کمار اگروال کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے 10 لاکھ روپے مالیت کے زیورات برآمد کر لیے۔ انیش کمار اگروال نے یہ چوری کی واردات طبا رومال جیولز لمبن مال روڈ نمبر 2 بنجارہ ہلز میں انجام دی تھی۔ کے سنواس راؤ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس بنجارہ ہلز ڈویژن کی نگرانی میں یہ کارروائی انجام دی گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مشیرآباد کے بھولک پور ڈویژن سائی چرن کالونی قریب VST کا مجلسی کارکن و مقامی کارپوریٹر کے ہمراہ دورہ کیا اور وہاں جاری بلدی کاموں اور مستحقین کے لیے تعمیر کردہ ڈبل بیڈ روم مکانات کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس ضمن میں مزید تفصیلات بھی بتائی۔ آج صبح 6:30 بجے میں بھولک پور کو آیا ہوں، بھولک پور بلدی وارڈ میں، اور یہاں پر ہمارے متعلقہ رکن بلدیہ جناب عقیل صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران شریف صاحب، یامین خان صاحب اور دیگر صدر و معتمدین کے ساتھ اور واٹر ورکس کے عہدیداروں کے ساتھ میں نے یہاں پر دورہ کیا، کیونکہ عوام کو یہ بتانا ضروری ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے بھولک پور کی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر ایک نئی سیوریج لائن پورے بھولک پور میں ڈالی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ پانی کی لائن کا بھی۔ تو الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر بھولک پور وارڈ میں 7 کروڑ کی لاگت سے ایک نئی سیوریج لائن کا کام 90% مکمل ہو چکا ہے۔ ایک 10% کام باقی ہے، گریو یارڈ قبرستان سے لے کے جانے کا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پورے بھولک پور میں ایک نئی سیوریج لائن ڈالی جا چکی ہے، 10% کام ہے وہ انشاءاللہ جلد سے جلد مکمل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا عوام سے کہ یہاں پر نئی پانی کی لائن پورے بھولک پور وارڈ میں ڈالی جائے گی۔ تو مجھے بتاتے بڑی خوشی ہوئی کہ 12 کروڑ کی لاگت سے ایک نئی پانی کی لائن منظور ہو چکی ہے، پائپس بھی یہاں پر پڑنا شروع ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے 8-10 دن کے اندر نئی پانی کی لائن کا کام بھی جلد سے جلد شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بھولک پور میں کمشنر ٹاسک فورس سینٹرل زون ٹیم حیدرآباد نے خفیہ اطلاع ملنے پر SS انٹرپرائزز آفس فرسٹ فلور آف نوودیا میڈیکل ہال بلڈنگ اپوزٹ MNJ کینسر ہاسپٹل ریڈ ہلز حیدرآباد میں دھاوا کیا اور آن لائن کرکٹ بیٹنگ ریکٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کر لیا، جن کی شناخت مہیش پرساد تیواری، پادھا کوٹی مکیش کمار اور P وکرم کے طور پر کی گئی ہے، اور ان کے قبضے سے نیٹ کیش 47,240 روپے، 4 سیل فونز، ایک اونیڈا 22 انچ کا LCD TV، ایک ٹاٹا اسکائی سیٹ اپ باکس، ریموٹ، ایک نوٹ بک پیڈ اور ایک بال پین برآمد کر لیا۔ کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم حیدرآباد نے عثمانیہ یونیورسٹی پولیس کے ہمراہ خفیہ اطلاع ملنے پر کرکٹ بیٹنگ ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے 3 افراد S سریش، پریم ساگر اور یلپا کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے نیٹ کیش 30,000 روپے، 3 سیل فونز برآمد کر لیے۔ تاہم اصل ملزم M پرساد مفرور بتایا گیا ہے۔ مزید کارروائی کے لیے گرفتار شدہ افراد اور ضبط شدہ اشیاء کو عثمانیہ یونیورسٹی پولیس اسٹیشن کے SHO کے حوالے کر دیا گیا۔
साउथ जोन टास्क फोर्स व भवानी नगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ममनुआ गैर मजाज गुटखे की फरोख्त में मुलविस 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुलजिमीन के कब्जे से 1 लाख रुपए मालियाती ममनुआ गुटखा व गैर मुल्की सिगरेट्स का जखीरा बरामद हुआ, जिसे जब्त कर लिया गया। टास्क फोर्स इंस्पेक्टर एस रघुवेंद्र की सरकर्दगी में बावसूख जराये की इतला पर फतेह शाह नगर में छापा मारा गया। इस दौरान 2 अफराद और 1 लाख रुपए की अशिया को जब्त किया गया और मजीद कार्रवाई के लिए भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने बल्दी डिवीजन रेन बाजार के मदीना नगर बी ब्लॉक के इतराफ इकनाफ के इलाकों का दौरा किया। सैयद अहमद पाशा कादरी ने अवाम से रास्त मुलाकात करते हुए उनसे मसाइल दरियाफ्त किए, जिस पर अवाम ने इलाके में बरक़ी पुल्स की शिकायत की, सीवरेज लाइन के मसाइल और सड़कों की मरम्मत, जदीद सड़कों की तनसीब के अलावा कचरे की निकासी से मुतल्लिक शिकायत। असम्बली ने मुतल्लिका महकमों के ओहदेदारों को शिकायत नोट करते हुए जल्द से जल्द उनकी यकसोई की हिदायत की। उन्होंने नाले के तरक्याती कामों का मुआयना भी किया और हिदायत भी जारी की। आज मदीना नगर जिला का दौरा किया गया। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कारपोरेटर वाजिद अली खान साहब के हमरा इब्तिदाई के सुदूर मोहतरमी बल्दी बल्कि आबराचारी के औहदेदारों के साथ यहाँ पर एक सबसे बड़ा मसला यहाँ पर देरी ना ये है कि यहाँ के नाले की डिसिल्टिंग नहीं हुई इस साल। याकुतपुरे में 2-4 जगह है यहाँ नालों की डिसिल्टिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन अल्लाह की वजह से एक दवीपे के नाले की डिसिल्टिंग हुई, उसकी वजह से पूरे नालों से थोड़ी राहत मिली अतराफ के लोगों में। इस बारिश के सीजन में एक वक्त ये बस्ती में थोड़ा पानी ओवरफ्लो हो गया। मजीद हम नालों के ताल्लुक से वसी और बड़े पैमाने पर एस्टीमेट बना रहे हैं। इंशाल्लाह वो काम होने के बाद आवाम को कई सालों तक राहत मिलेगी। और इलेक्ट्रिक पोल्स के ताल्लुक से लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे बाद घरों को लग के इलेक्ट्रिक के पोल है, घरों के ऊपर से एचटी की लाइन जा रही है, उसको चेंज करने के वास्ते इलेक्ट्रिक के इंजीनियर्स को उसको पाबंद किया गया है जल्द से जल्द उसको चेंज करना। जो घरों पे पोल जा रहे हैं मकीनों के लिए खतरा है वो उसका इंतजाम किया जाए। सीवरेज की लाइन के ताल्लुक से भी 1-2 गलियों में बताया गया, वहाँ के इंजीनियर्स को बता दिया गया कि सीवरेज के एस्टीमेट बना। रोड के ताल्लुक से एरिया कारपोरेटर वाजिद अली खान साहब कई पर न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। बालापुर पुलिस ने मुलाजिमत दिलाने का झांसा देते हुए धोखा देने वाले शख्स अकुला प्रवीण 23 साल को गिरफ्तार कर लिया, जो नकली DRDO के नाम से ID कार्ड बनाते हुए मासूम लोगों को इस कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर उनके पास से रकम लूट लिया करता था। मुलजिम के पास से 2 जाली शनाख्ती कार्ड, आईफोन और नकद रकम बरामद कर लिए। ये कार्रवाई रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश मुरलीधर भागवत की हिदायत पर जी सुधीर बाबू एडिशनल कमिश्नर रचाकुंडा की जानिब से की गई। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में 2 जादूगरों के खिलाफ जिनसी हमला और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। चंद्रयान गुट्टा के साकिन एक खातून ने जिनसी हिरासानी और धोखाधड़ी केस के ज़िम्न में 2 जादूगरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिनकी शनाख्त हबीब मोहम्मद इदरीस और अबू बकर के नाम से हुई है। बहादुरपुरा पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया। बादिजा खातून ने इस ज़िम्न में मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। उतारा करते बोल के मेरे को रूम में लेके गए, लेके जाके वो सोडानी उन्होंने दोनों मिलके पैरां दबाए और एकदम अंगूठा दबा दिए मेरा, और यहाँ वहाँ गलत हरकतें करना शुरू कर दिए। उसके बाद मैं बोली क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग, बोल के बच्ची मारने लगी तो बर्फ़ का पानी डाले मेरे ऊपर। बर्फ़ का पानी डाले, जब बच्ची भाग के आई क्या हुआ बोले तो वो बच्ची के साथ भी वही हरकतें करे।
खैर हम अल्लाह के फजल से बचा के निकल गए। लेकिन हम जब दरख्वास्त किए वहाँ पे जाके बहादुरपुरे पे, तो वो लोग आके वो शमपेट का MLA है थे, उसको लेके आया वो हबीब मोहम्मद, लेके आके इन लोगों की दरख्वास्त नहीं लेना, फिर भी वो लोग कॉपरेट करे, बहुत अच्छा हमारे संगा तो करी हुकूमत यानी हमारे को रिस्पेक्ट दिए, आए हमारे साथ, फिर भी वो लोग थोड़ा करे। लेकिन उसको अरेस्ट करना मेरी गुजारिश है। ऐसा करते रहेंगे तो कई औरतों की इज्जत लुट जाएंगे, कई घर बर्बाद हो जाएंगे और कई लोग बर्बाद होने का इम्कान है। उसको यहाँ से हकाल देना, उसको अरेस्ट करना, उसको अच्छी सज़ा देना, तो ये मेरी दिली ख्वाहिश है। आप जो भी इसमें नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने पी प्रवनिया जोनल कमिश्नर खैरताबाद, डिप्टी कमिश्नर JHMC, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दीगर JHMC ऑफिसर्स के हमरा सुबहान के हमरा बाजार घाट, रेड हिल्स AC कार्ड और दीगर इतराफ इकनाफ के इलाकों का दौरा करते हुए वहां जारी शेड के कामों का मुआयना किया। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में सुबह जोनल कमिश्नर खैरताबाद के साथ एक तफसीली दौरा किया गया रेड हिल्स डिवीजन और विजयनगर कॉलोनी डिवीजन का। जितने भी पेंडिंग वर्क्स थे उसके लिए उनको ख़ास तवज्जो दिलाई गई है। ख़ास तौर से ये जो बारिश आने के अंदर वाटर स्टैग्नेशन का उसके ऊपर और जो डैमेज रोड्स थे उसके ऊपर तमाम के ऊपर इसको ख़ास तवज्जो दिलाई गई है। मैं मेरे साथ में रेड हिल्स कारपोरेटर जनाब खान साहब, विजयनगर कारपोरेटर जफर खान साहब अपने जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैदराबाद में हल्की कशीदगी के बाद यहां तालिब इल्मों ने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इम्तिहान के अमल के खिलाफ एहतजाज किया। यूनिवर्सिटी सेंसिंग लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर सिक्योरिटी एहलकारों ने गेट उस वक्त बंद कर दिया जब तलबा ने अहाते में दाखिल होने की कोशिश की। ताहम कुछ तालिब इल्म दरवाजों पर चढ़ गए और सिक्योरिटी के खिलाफ वर्जी करते हुए यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए। मालूमात हासिल करने पर कुकट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुछ तलबा को हिफाजती तहवील में ले लिया। उन्होंने दूसरे तालिब इल्मों को वहां से मुंतशिर कर दिया और हालात को कंट्रोल में कर लिया। JNTU-H ने ज़िमनी और बाकायदा तलबा के लिए टाइम टेबल जारी किया है। तमाम BTech और BPH ARM कोर्सेज के ज़िमनी इम्तिहानात 20 अक्टूबर में मुनक़िद होंगे और PG, BTech, BPH, RM और MBA के तमाम रेगुलर तलबा के लिए पहले हफ्ते नवंबर में मुनक़िद होंगे। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और म्यूनिसिपल इंतजामिया के वज़ीर KTR ने मेयर बोंतुरा मोहन और DGP महेंद्र रेड्डी के हमरा हैदराबाद शहर में CCTV कैमरों की तनसीब में पेशरफ्त का जायजा लिया। जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर KTR ने हिदायत की कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ तमाम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, गेटेड कम्युनिटीज, मॉल्स, IT पार्क्स, शेल्टर होम्स, सरकारी अस्पतालों, बस टर्मिनल्स और मार्केटों में CCTV कैमरे मैंडेटरी नस्ब करे। वज़ीर KTR ने हुकाम को हिदायत की कि जहां जरूरत हो CCTV कैमरे नस्ब करने के लिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों, पब्लिक सेक्टर के अंडरटेक्स, रिहायशी वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ मिलकर काम करे। वज़ीर KTR ने वाज़ेह किया है कि CM KCR ने शहरों की हिफाजत को सबसे ज्यादा तरजीह दी है और रियासत में सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम शुरू किए हैं। दोनों वज़रा ने बताया कि स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट की मुतफ़िक़ा कोशिशों की वजह से हैदराबाद शहर में अमन व अमान की सूरत हाल में खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। DGP ने वज़रा को आगाह किया कि शहर में बड़ी तादाद में CCTV कैमरों की तनसीब से बाज़ किस्म की जुराइम को कम करने में मदद मिली है और जुराइम के हल और मुजरिमों को गिरफ्तार करने में भी मददगार साबित हुआ है। इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, JHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, हैदराबाद, साइबराबाद, राचाकुंडा पुलिस कमिश्नर्स और पुलिस डिपार्टमेंट के हुक्काम मौजूद थे। रुकन असम्बली KP विवेकानंद ने पैदम्मानगर कुतुबुल्लापुर का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की और वहां VRO शाम की जानिब से इलाके के मकानात को मुनद्दिम किए जाने पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। देखिए उनका इस ज़मन में क्या कहना है। చాలా క్లారిటీగా చెప్తా ఉన్న సంగతిని మరి ఇప్పుడు వీళ్ళు మన వాస్తవం ఏంటంటే నీ చెప్పడం కంటే ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా మనం మహిళా సోదరులు ఇక్కడ బస్తీ వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు విన్నాం. నిన్న కూడా వేకుజామని నేను కార్యాలయానికి పోయేసరికి పాపం దగ్గర 2-3 DCMలలో మహిళలు ఈ వికలాంగులు అందరూ కూడా నా కార్యాలయానికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఆశ్చర్యపోయినా. ఇంతమంది రావడం ఏంది, ఏం సంగతి అనేసరికి వాళ్ళు ఏడవడమే. దాంతో పాటు వారు చూపించే వీడియోలు
దాంట్లో ఒక అధికారి అయిన వారు ఒక పౌరుణ్ణి దుర్విషలాడడానికి ఎవరు అధికారం ఇచ్చినారు? అంటే మిమ్మల్ని ఎవరు అడుగుతలేనా? అంటే మీ పై అధికారులని చీకట్లో పెట్టేసి వారు మభ్య పెట్టి సమాచారం అందించకుండా కింద విలువల బ్లాక్ మెయిల్ చేసుకుంటూ ఉండడమా? ఖచ్చితంగా ప్రజలు గెలిపించిన ప్రజాప్రతి जुनूबी हिंदुस्तानी फिल्मों की मारूफ अदाकारा तमन्ना भाटिया की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मौसूला इतलात के मुताबिक तमन्ना भाटिया शूटिंग के सिलसिले में हैदराबाद में थी, तभी उनमें कोरोना इन्फेक्शन की अलामत दिखाई दी थी। उन्हें हैदराबाद में ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाल ही में तमन्ना भाटिया ने कुछ दवाएं ली थी और माहिरीन की एक टीम ने उनका इलाज किया था। इससे पहले अगस्त में तमन्ना ने अपने वालिदैन के कोरोना से मुतासर होने के बाद अपनी भी जाँच कराई थी। हालांकि इस दौरान उनकी रिपोर्ट मनफी आई थी। तमन्ना के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आने के बाद शायकीन तशवीश में हैं और सभी ने ट्विटर पर गेट वेल सून के पैगाम पोस्ट किए हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपने ससुर गंगी रेड्डी की मौत के तीसरे दिन मुनक्किद यादगार प्रोग्राम में विजयवाड़ा से कड़पा रवाना होते हुए शिरकत की। वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी का ओहदेदारों और रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। जगन मोहन रेड्डी ने अपने कुंबे के अफराद के हमरा पुलिवेंदुला भाकारापुरम के वाईएसआर ऑडिटोरियम में डॉक्टर गंगी रेड्डी के लिए यादगार खिदमत में शिरकत की। ज़राई क़वानीन के खिलाफ पूरे मुल्क में किसानों की तहरीक जारी है। कई मुकामात पर किसान सड़कों पर उतर कर धरना व मुजाहरा कर रहे और पंजाब में तो ये तहरीक अपने उरूज पर दिखाई दे रही। किसानों ने गैर मुय्यना मुद्दत का धरना शुरू कर रखा है और रेल रोको तहरीक भी शुरू की हुई है। इस दरमियान पंजाब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रहा, जिसमें कुछ मुस्लिम भाइयों ने ज़राई क़वानीन के खिलाफ धरने पर बैठे किसान भाइयों में लंगर तकसीम किया है। अशोक सिंह गर्चा नामी एक ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए वीडियो में बताया गया है कि पंजाब में मुस्लिम भाइयों ने नमाज पढ़ी और फिर किसान मुजाहिरीन के दरमियान लंगर तकसीम किया गया। वीडियो देखने से वाज़ेह होता है कि पंजाब के किसी मुकाम पर सैकड़ों की तादाद में सिख किसान ज़राई क़वानीन के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं और पंजाबी जुबान में स्टेज से तकरीर भी हो रही। इसी दरमियान कुछ मुस्लिम बरादरान टोपी पहने भूखे प्यासे बैठे किसानों में लंगर तकसीम कर रहे, जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का बेहतरीन नमूना है। काबिल जिक्र है कि मोदी हुकूमत के जरिए पास करदा ज़राई क़वानीन के खिलाफ पूरे मुल्क में हंगामा बरपा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पंजाब और हरियाणा का दौरे कर हाल ही में नाफिज ज़राई क़वानीन के खिलाफ ट्रैक्टर रैलियां कर रहे हैं। इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने सिंगरूर में रैली को खिताब किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि गुज़िश्ता 6 सालों से मोदी हुकूमत सिर्फ किसानों और गरीबों पर ही हमला कर रही है। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी हुकूमत को गरीबों से कोई सरोकार नहीं है। इसकी हर पॉलिसी सिर्फ 2-4 दोस्तों के लिए बनाई जाती है। पहले नोटबंदी कर दी, फिर GST नाफिज कर दिया, नोटबंदी से पूरा सड़कों पर आ गया। उन्होंने नए ज़राई क़वानीन को लेकर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अभी किसान मंडी में जाकर बात कर सकता है, लेकिन उन नए क़वानीन के बाद किसान के पास वो रास्ता ही नहीं बचेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि मंडी सिस्टम में खामियां हैं, लेकिन उसे मजबूत करने की जरूरत है। किसानों के लिए काम करने की जरूरत है, लेकिन मोदी जी वो नहीं कर रहे। वो इस पूरे सिस्टम को खत्म कर रहे। जैसे नोटबंदी से गरीबों को चोट पहुंची, वैसे ही इन क़वानीन से किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर अपना रद्दमल जाहिर किया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाते हुए बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन भी सामने आया है। ड्रग्स के मामले में गुज़िश्ता कई दिनों से कई फिल्मी सितारों से पूछताछ की जा रही। अक्षय कुमार ने ड्रग्स के मामले में अपना रद्दमल जाहिर किया। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है। वीडियो में अक्षय ने कहा, आज थोड़े भारी दिल से आपसे बात कर रहा हूँ। गुज़िश्ता कुछ हफ्तों में बहुत सी बातें सामने आई। जी, मैं कहने के लिए हर तरफ इतना मनफी है कि समझ नहीं आता क्या, कितना और किससे बोलूं। देखिए, स्टार भले ही हम कहलाते हैं, लेकिन बॉलीवुड को आपने अपने प्यार से बनाया है। हम महज एक इंडस्ट्री नहीं है। हमने फिल्मों के जरिए अपने मुल्क की तहजीब व रिवायात को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया है। जब जब हमारे मुल्क के अवाम के जज्बात की बात आई, तो इतने बरसों से फिल्मों ने उसे दिखाने की कोशिश की। इसी के साथ KBN न्यूज़ बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा